Hello students, today I am here with another class and this is for class 9, the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. And today we will be discussing and the poem will be explained, and you will get the complete explanation of entire stanzas with the literary devices used in this poem. So hello students, this is Dr. A. Zahra and you all are welcomed in Zahra's classes. Let us start with the poem, The Road Not Taken. In this section, we will read about the poet, we will read about the poetry as well as the explanation. Poetry reading will be done with explanation of each stanza, and in third section, we will discuss the literary devices used in it. So let's start with the first part, that is the introduction about the author, about the poet. The poet is Robert Lee Frost, and he was an American poet born in San Francisco. He depicted a realistic life through language and situation familiar to common man. Okay. He wrote many things which was very much related to common man in form of poems or in form of plays, and he was winner of 4 Pulitzer Prizes for his work and received more than 40 honorary degrees. And as you know students, he was a very renowned poet, but he faced many challenges and difficulties in his personal life and was sometimes unsuccessful too in several endeavors. Okay, but then he grew with those difficult times, and he grew up in rural life, and he began to settle there. He started writing his poems in the countryside. He spent almost 40 years and went unknown and became known for his famous works including Fire and Ice, Birches, Nothing Gold Can Say, and Home Burial. His poem, The Road Not Taken, is often read at graduation ceremonies across United States. So this was a very brief introduction about the poet, and this poem which we are going to study today, The Road Not Taken, is a beautiful poem, and it gives an important message also, that poet wants to give us, or he especially wants to give to students as well as person who want to make a choice, that the moment we decide something, or the moment we choose something for our future, it has an impact, it has a very deep impact on our future. The decision itself has a very deep impact. आप अपने लाइफ के लिए कुछ भी समय, किसी भी समय में आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं या चूज़ करते हैं, तो उसको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, और वही टर्निंग पॉइंट होता है, वही चॉइस जो है आपका, आपके फ्यूचर को या तो कार्व करता है या तो डी-शेप करता है. अगर हमने कभी बाय मिस्टेक, सपोज इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, हम कुछ नहीं करते, केवल हम रिग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट गो बैक. हम पीछे जाके उसके साथ कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. हमको रिग्रेशन के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं रह जाता है. तो पोएट यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि जब भी हम कोई चॉइस करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें एक कोई ऐसा रास्ता चुनना होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो फ्यूचर के लिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम and we will discuss about the entire stanza. First we will do the reading. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So students, in this first stanza, as you can see here, the poet says, first we will discuss the meanings of the words which are difficult or which are tough. The meanings are given here, but still diverge means separate or took different shape. As you can see here, there is diversion, the diversion is here. तो यहाँ पे एक फोक जैसी चीज़ बन रही है, डाइवर्ज हो रहा है,
तो इसको आप बोलते हैं डाइवर्जन, विच मीन्स द सेपरेटेड और टुक डिफरेंट डायरेक्शन, जो डिफरेंट डायरेक्शन, डाइवर्ज होना, डिफरेंट डायरेक्शन लेना। ओके, येलो वुड, ये येलो वुड हियर मीन्स फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स, यानी कि यहाँ पे येलो वुड का मतलब हो गया ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा रास्ता जहाँ पे सूखी हुई पत्तियाँ हैं या फिर डिकम्पोज लीव्स हैं, या फिर यहाँ पर जो है बहुत समय से बहुत पुरानी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि इस येलो वुड का मतलब केवल जंगल से या सूखी पत्तियों से नहीं, यहाँ पोएट का तात्पर्य, पोएट का जो सार है यहाँ पे उन लोगों से भी है जो कि पुराने आइडियाज़ के साथ हैं, या वो दुनिया जो कि फुल ऑफ पीपल है, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, यानी बहुत कंजेस्टेड पोर्शन है। ठीक है, तो इस येलो वुड का मतलब ये हुआ यहाँ पे। And sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे undergrowth का मतलब होता है dense growth of plants and bushes, यानी एक forest जहाँ की आपको कोई भी रास्ता या ऐसी जगह जहाँ की आपको कोई भी मोड़ कुछ भी नज़र नहीं आता है, जहाँ पे बहुत डेंस ग्रोथ होता है, बहुत घना जंगल जहाँ पे होता है, या बुशेस या पेड़ पौधों का बहुत घना जमावड़ा होता है। तो बच्चों यहाँ पर इन दिस पोएम, इन दिस स्टैंजा, व्हाट द पोएट वांट्स टू से कि वंस, एक बार पोएट जो है, वंस ही वाज वॉकिंग डाउन द रोड, और वो एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पे टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, यहाँ ऐसी जगह पे आके पोएट खड़े हो गए जहाँ की उनको दो रोड नज़र आई। एक रोड जो है वो दो हिस्सों में बट गई, डाइवर्जन हो गया, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो किस रोड पर जाएं, वो कंफ्यूज थे। ठीक है, देयर वे टू डिफरेंट पाथ्स एंड उनको उन दोनों पाथ्स में से एक पाथ को चूज करना था। ही हैड टू चूज वन, इधर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक पाथ चुनना था। तो उन्होंने ये बोला कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एज अ सिंगल पर्सन। ही सेज दैट, पोएट सेज दैट ही वॉज ओनली वन पर्सन। तो एक इंसान है तो एक ही रोड चुनेगा, चाहे वो इस पाथ पे जाए चाहे इस पाथ पे जाए। दो इंसान होते तो डाइवर्ट हो जाते कि एक इस पाथ पे जाता है, किस पाथ पे जाता है, लेकिन पोएट कह रहे हैं कि वो यहाँ पे एक अकेले इंडिविजुअल थे और उनको एक ही रोड ट्रैवल करने के लिए चुननी थी। एंड ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ दिस टू रोड्स, इधर दिस पाथ और दैट पाथ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल होने के बाद लॉन्ग आई स्टूड का मतलब बहुत देर तक खड़े होके वो उसको सोचते रहे, अपने मन को बनाते रहे, अपने चॉइसेस को सोचते रहे कि इस पाथ पे जाएं या इस पाथ पे जाएं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी बहुत देर तक खड़े होके पोएट ने यहाँ पे सोचा कि कौन सा पाथ लें, और वो देखते रहे ध्यान से कि कौन सा रास्ता अंदर जाता है और जाके घने जंगलों में गायब हो जाता है। वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, ऐसी जगह जहाँ की मुझे आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता। तो इस तरह से द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ, बहुत केयरफुली ही स्टार्टेड लुकिंग एट द पाथ एज फार एज ही कुड, जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक पोएट खड़े होकर बहुत देर तक पोएट ने सोचा और उस रास्ते पे जाने की सोची, और बहुत देर तक वो रास्तों को टटोलते रहे। एंड बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज, मतलब जाने से पहले वो देखना चाहते थे कि वो कैसा है, क्या वो सूटेबल है उनके लिए, क्या वो पाथ को, उस रास्ते को देख पा रहे हैं, जहाँ से वो खड़े हैं वहाँ से आगे देख पा रहे हैं कि वो कहाँ तक जा रहा है, कहीं से कर्व तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ पेड़ों से छिप गया हो या वो रास्ता जो है कहीं गायब हो गया हो। ओके, तो बच्चों इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? इस पैराग्राफ को अगर हम अपने जीवन में लें, इस पैराग्राफ को या इस स्टैंजा को हम अपने रूटीन लाइफ के साथ देखें तो क्या होता है, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, इट हैपन्स इन आवर लाइफ दैट when we have choices we have many alternatives but we have to choose only one out of them। तो हमारे सामने कई बार ऐसा होता है, अभी देखिए अब आप लोग भी हैं, अभी 9th के बाद 10th में जाएंगे तो आपके पास सामने एक समस्या आएगी
एक प्रॉब्लम आएगी कि क्या करना चाहिए, एक सोच आएगी कि क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या कैरियर बनाना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाले लोग बताएंगे कि ये ऐसे करिए, इसको ये टॉपिक लीजिए, ये सब्जेक्ट लीजिए। तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होंगी, ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होंगे, लेकिन हम ही को चुनना है। बोलने वाले, बताने वाले हमें समझाएंगे, लेकिन चॉइस हमारी होनी चाहिए, और वो हमको बहुत टाइम लेके सोचना है, और हम सोचते हैं। वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट दिस थिंग। और हर रास्ते में, चाहे आप कोई भी रास्ता चुने अपने जीवन में, आगे कोई भी कोर्स चुने या आगे किसी भी प्रकार की लाइफ जीने के लिए आप चुने, तो आपको पता है हर एक में मेरिट्स और डिमेरिट्स, कहीं प्रॉज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता आपने चुना तो वो बहुत अच्छा है और उसमें कोई मुसीबतें नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, दूसरे रास्ते में बहुत स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। हर एक पर्टिकुलर वे में, हर पर्टिकुलर चॉइस में कहीं ना कहीं आपको प्रॉज एंड कॉन्स मिलेंगे। और आपको ये भी देखना है कि वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर यू और नॉट, है ना। हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, इसमें ये कमियां तो हैं, लेकिन क्या वो मेरे लिए सूटेबल है, या इसमें ये अच्छाइयाँ हैं तो क्या मेरे लिए सूटेबल है, और तब हम एक डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरह से जो पोएट है उस रास्ते पे खड़े होकर सोच रहे हो, अपने जीवन के साथ भी वो इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि हम खड़े होते हैं उस मुकाम पे जहाँ पे हमारे पास कई चॉइसेस होती हैं, और हमें बहुत सोच समझ के उन चॉइसेस में से एक को चुनना होता है, ताकि वो हमारे जीवन के लिए आगे बेनिफिशियल हो। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा। इन दिस स्टैंजा लेट मी रीड फर्स्ट। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So students, in this paragraph first we will discuss about the meanings. Fair का मतलब कि बहुत अच्छा, एक दूसरे से अच्छा, मतलब यहाँ पे पोएट बता रहा है कि उन्होंने क्या किया। जब पोएट खड़े होके एक पात से दूसरे पात की तरफ देख रहे थे, वो ये महसूस कर रहे थे कि कौन सा रास्ता उनके लिए अच्छा है। उन्होंने चेक किया कि कौन सा रास्ता उनके लिए बहुत अच्छा है, और उन्होंने एक डिसीजन लिया, एंड देन ही डिसाइडेड एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ। और वो क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरे पाथ पे चलेंगे, एक पाथ उन्होंने चुना और उस पाथ पे वो चलना शुरू हो गए। उन्होंने क्यों उस पाथ पे चलना शुरू किया? क्योंकि उनको लगा कि वो पाथ जो है दूसरे वाले से बेहतर है। Because he thought that he started walking on another path and he felt that the path out of the both paths were equally good, but he says just as fair, because he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. तो दोनों में से वो उनको लगा दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये पाथ चुनता हूँ, उससे बेहतर है, मैं उस पर चलता हूँ। तो यहाँ पर फेयर का मतलब ये हुआ, एंड हैव परहैप्स द बेटर क्लेम। उनको ऐसा लगता है कि दोनों पाथ एक जैसे हैं, दोनों पाथ में सब सेम चीज़ें दिख रही हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उसमें से एक पाथ चुना जो उनको लगा कि वो बेहतर ऑप्शन है, उनके लिए बेटर ऑप्शन है। ये बेटर क्लेम का मतलब ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज क्यों चुना उन्होंने उस रास्ते को? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज। ठीक है, तो उन्होंने एक रास्ता छोड़ के दूसरे को चुना। क्यों? क्योंकि एक रास्ता जो था वो ग्रासी था, जिसपे वो चलना चाह रहे थे, चलने लगे पोएट, तो वो क्या था कि वो ग्रासी था, उसके ऊपर उन्होंने ये चूज़ किया कि इट हैड ग्रास ऑन इट, बहुत सारा ग्रास है उसके ऊपर, और इसका मतलब कि वो उसके ऊपर कोई चला नहीं है ना। जब किसी रास्ते पे बहुत घास उगी होती है, इसका मतलब उस पर कोई नहीं चला होता है, क्योंकि जब कोई का आना जाना होता है तो वहाँ से वो रास्ते बनने लगते हैं, वहाँ से घास गायब होने लगती है। तो उनको लगा कि इस रास्ते में बहुत ग्रासी है ये, और अनवांटेड वियर है, यानी यहाँ पे अभी किसी का भी आना जाना उनको नहीं लगा कि कोई उस पथ पे चला होगा, अनयूज्ड है वो। तो मैनी पीपल मे नॉट हैव वॉकड ऑन दिस पाथ अर्लियर,
और दैट्स वाई इट वॉज ग्रासी, इसीलिए वो ग्रासी है क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर चले नहीं हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के न चलने की वजह से वो रास्ता जो है वो अभी भी ग्रासी है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसी रास्ते पे चलना चाहिए, कुछ दूर तक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन though as for that the passing there had warned them really about the same, तो यहाँ पे पोएट को एक रियलाइजेशन होता है, जब वो पाथ पे चलने लगते हैं कुछ दूर जाने के बाद उनको लगता है कि नहीं दूसरा वाला पाथ भी वैसा ही है। रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन वॉर्न आउट द सेम वे, उसी तरह से दोनों पाथ, और दोनों पाथ जो है सिमिलर हैं, एक जैसे हैं और कहीं पे भी कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। तो इस स्टैंजा को हम कैसे जोड़ते हैं अपने लाइफ से बच्चों, कि हमारे जीवन में भी हम जब कोई एक चॉइसेस लेते हैं, चॉइसेस में से कोई एक चीज़ चुनते हैं, तो कोई एक ऑप्शन लेते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद हम इसलिए चुनते हैं कि चलो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, या इस तरह से हम करेंगे तो ये मेरे को इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये मेरे लिए ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, इसमें प्रॉब्लम्स कम होंगी। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर पाथ को चुनते हैं या एक पर्टिकुलर चॉइस लेते हैं, तो आगे जब हम बढ़ते हैं अपने जीवन में, जब हम पाथ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि अरे नहीं, इसमें भी तो उतनी ही मुश्किलें हैं, उतने ही स्ट्रगल हैं जितना इसमें है। तो हमें ये एहसास होता है कि कोई भी ऑप्शन हम ले रहे हैं, सब में उसी तरह का बेनिफिट होता है, उसी तरह का डिसएडवांटेज होता है, उसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसी तरह के चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। हम ये सोच के चूज़ करते हैं कि ये बेटर ऑप्शन है, लेकिन ये बेटर तो होता है, लेकिन ये मान के चलिए बच्चों के जीवन में कोई भी रास्ता आप चुनें, वो आप अपने लिए सोच के अच्छा चुनते हैं, लेकिन वो रास्ता उतना ही कठिन होता है जितना दूसरा ऑप्शन आपने छोड़ा होता है। तो हर रास्ते में, हर ऑप्शन में, हर चॉइस में, फ्यूचर बनाने में आपको उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि दूसरे छोड़े हुए ऑप्शंस में होता है, ठीक है। So now students, coming on to next stanza, that is stanza 3, and we will read this. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रॉडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर, यानी कि उन पत्तियों पे अगर किसी पत्ती के ऊपर या किसी ढेर सारे लीव्स के ऊपर कोई चलता है तो वो उस पत्ती का कलर ख़त्म हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है वो। तो पोएट को ये लग रहा है यहाँ पे कि बोथ द पाथ तो सिमिलर थे, और उस मॉर्निंग जब वो उठे और जब उनको जाना था, एक पाथ को चूज़ करना था, तो दोनों पाथ उनको सिमिलर लगा, बहुत कंफ्यूज थे वो। क्यों? क्योंकि बोथ हैड लीव्स ऑन देम, दोनों पे लीव्स थी, घास थी, और उनको ऐसा लगता था कि नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर। तो स्टिल ग्रीन है तो उनको ऐसा लगता है कि इस रास्ते पे कोई नहीं चला होगा, क्योंकि कोई चलता तो उन पत्तियों को दबा के उसके कलर्स जो हैं वो फेड हो जाते, ब्लैक कलर में हो जाता, ग्रीन कलर उसका ख़त्म हो जाता। तो he decided that day he would take one path and keep the other path for another day. तो उसने सोचा कि जब दोनों एक जैसे हैं, दोनों पे पत्तियां अभी ग्रीन है, कोई चलानी है, तो मैं अभी एक पाथ को चुनता हूँ। I kept the first, सोचते हैं कि एक पाथ पे आज चलता हूँ और फिर दूसरे रास्ते पे जाने के लिए फिर कभी मैं वापस आऊँगा और फिर मैं दूसरे रास्ते को चुनूँगा। हम भी देखिए, कहीं पे भी आप कोई एक कैरियर ऑप्ट करते हैं, तो बच्चों कोई भी एक फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं या कोई भी आप एक डिसीजन लेते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि ठीक है, अभी दो मेरे पास ऑप्शंस है, मैं ये वाला ऑप्शन चुनता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि लाइफ में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो ऑप्शंस से आप वापस, आपको मालूम है, नहीं आ पाएंगे। वापस आके फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना वो बहुत कठिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। और पोएट को ये पता था कि मैं इस रास्ते पे तो चल रहा हूँ, लेकिन दूसरे रास्ते पे आने के लिए मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। यानी उनको ये डाउट था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, अगर मैंने एक रास्ता चुन लिया है
तो इस रास्ते पे मैं चला गया तो आगे मुझे और ऑप्शंस मिलते जाएंगे, लेकिन मेरे को ये ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा कि मैं वापस उस पाथ पे आके नेक्स्ट पाथ पे जाऊं। बट फिर भी पोएट अपने दिमाग में ये बात रखते हैं कि हमको इस रास्ते पे एक रास्ता चुन के हम जाते हैं, फिर बाद में वापस आके इस रास्ते पे जाते हैं। तो इसको हम अपने जीवन से कैसे लिंक करते हैं कि इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन, हमें हमेशा मूव करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए हमें मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास वापस आने का चांसेस बहुत कम होता है और अदर ऑप्शन लेने का चांस हमारे पास नहीं रह जाता। तो जो भी हम चुने सोच समझ के चुने, और ये समझ के चुने कि हमारे इस रास्ते में कठिनाइयाँ आनी हैं, प्रॉब्लम्स आने हैं, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स से जूझ के झेल के हमें और नए रास्तों को अपने लिए कार्व करना है। होप सो स्टूडेंट्स दिस पोर्शन इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, that is stanza 4, and let us see in stanza 4 what the poet wants to say. In stanza 4, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. सो यहाँ पे साई का मतलब है डीप ब्रेथ, यानी कि एक ठंडी सांस लेना, हैंस यानी हियर और इन फ्यूचर। सो इन लास्ट स्टैंजा ही सेज दैट इन फ्यूचर वो कभी एक ठंडी सांस लेते हुए वो सोचेंगे कि एक समय था जब मैं किसी एक पॉइंट पे लाइफ के आके अटक गया था और मेरे पास दो ऑप्शंस थे एज ए ट्रैवलर, और मुझे एक रोड चुनना था। तो मैंने कौन सा रोड चुना? वो रोड चुना जिस पे बहुत कम लोग पहुँचे। ठीक है, बहुत कम लोग पहुँचे। तो यहाँ पे बता रहा है पोएट, ये बता रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग, यानी कभी जीवन में फ्यूचर में कभी एक समय आएगा जब वो एक ठंडी सांस लेके इस चीज़ को इमेजिन करेंगे, इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, सोचेंगे कि बहुत पहले मेरे पास फ्यूचर के लिए ऑप्शंस थे और मैंने अपने लाइफ के उस पॉइंट पे उस रास्ते को चुना। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, मैंने उन दो रास्तों में से उस रास्ते को चुना, दैट वॉज वन लेस ट्रेवल्ड, यानी जिसपे बहुत कम लोग चले थे, और इसी मेरे डिसीजन ने आज मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ मैं आज हूँ। तो इसी तरह से बच्चों फ्यूचर में जब हम ग्रोन अप होते हैं तो हम कभी बैठते हैं सोचते हैं कि हम जब छोटे थे या जब हम यंग थे तो हम सोचेंगे कि हमारे पास ये 2 या 3 ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें से हमने वो वाला चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले या जिस चीज़ को बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है बच्चों आपके लिए कि यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग योर चॉइसेस। आउट ऑफ ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं आपके लाइफ में, उसमें से आपको बहुत वाइजली और केयरफुली उसको चुनना है, क्योंकि आपका फ्यूचर उस ही पर्टिकुलर चॉइस पे डिपेंड करेगा, उसी एक मोमेंट पे डिपेंड करेगा। आपकी चॉइसेस, अगर चॉइसेस में से एक चॉइस आपने बहुत केयरफुली की है तो वो डेफिनेटली आपको किसी ऐसी जगह पे लैंड कराएगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लाइफ जी पाएंगे। लेकिन अगर एक कहीं मुश्किल आ गई, कहीं एक आपकी चॉइस गड़बड़ हो गई, तो आपको पता है एज पोएट सेज कि हम वहाँ से बैक नहीं हो सकते, हम उस रोड पे बैक होके दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम which the poet has written for students, and here it is giving a very beautiful message that while making choices for future we have to be careful, and every time just think that all the paths, जो भी रास्ते हैं सब में कठिनाइयाँ हैं, सब में परेशानियाँ हैं, लेकिन आपको अपने रास्ते उसमें से बनाते चलना है एंड बेस्ट चॉइस को आपको ऑप्ट करना है। So here the poem of 4 stanzas is over. Now we will move on to next part, that is the literary device, that is third part, and we will see the particular things with particular stanza. इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है वो है ए बी ए बी, ठीक है। देन अभी हम उसको स्टैंजास के साथ डिस्कस करेंगे। देन एक फिगर ऑफ स्पीच हुआ है एनाफोरा, और ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं बिल्कुल बिगनिंग में,
और इसमें आप देखेंगे जब आप पैराज में जाएंगे, स्टैंजाज में जाएंगे, तो आपको एंड वर्ड रिपीटेड है बिगिनिंग ऑफ लाइन्स 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो एंड ये रिपीटेड है आपके इसमें। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में आप देखेंगे कि एंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एनफ हो रहा है। एलिटरेशन, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जहाँ पे आप जब स्टैंजास को देखेंगे तो यहाँ पे एलिटरेशन क्या है, वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेम साउंड रिपीट होता है। जैसे वांटेड वियर, यहाँ पे व यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो वांटेड वियर। देन फर्स्ट फॉर, फ यहाँ पे फ यूज हो रहा है, एफ साउंड आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और दो, दैट, द साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप स्टैंजाज में जब हम मूव करेंगे तो देखिएगा वहाँ पे एलिट्रेशन आपको दिखेगा, वो डिवाइस यूज हुआ है। देन फोर्थ पार्ट इज सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म फिगर ऑफ स्पीच है, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन की तो जो एक्चुअल में वो उसका कारण होता है रहने का, वो नहीं होता, उसकी मीनिंग जो है वो लिटरल मीनिंग यहाँ पे नहीं आती है, दूसरी मीनिंग आती है। द एक्शन ऑफ अ कैरेक्टर, वर्ड, एक्शन और इवेंट दैट हैव अ डीपर मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द होल स्टोरी। तो यहाँ पे टू रोड्स जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, एक्चुअली में रोड तो है, लेकिन यहाँ पे रोड को रोड की तरह नहीं यूज़ करके यहाँ पे उसका मतलब होता है चॉइस। तो यहाँ पे सिंबॉलिज्म है, यानी रोड को हमने चॉइस के लिए सिंबलाइज किया हुआ है। तो ये वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ जो वर्ड ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वो उसका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता, लेकिन उसका डीप सेंस लिया जाता है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज रिपीटिशन। और यहाँ पे ये एजेस एंड टू रोड्स डाइवर्स्ड इन वुड, और फिर टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड। तो ये क्या है, ये रिपीटेड हैं ये वर्ड और ये पर्टिकुलर लाइन, तो ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी आता है इसमें। देखते हैं बच्चों इसमें, आप जैसे देखिए स्टैंजा 1 में यहाँ पे देखिए फिगर ऑफ स्पीच जब हम देखते हैं तो पहला जो आपने देखा कि वहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है, राइमिंग स्कीम क्या है, यहाँ पे सपोज दिस इज योर ए, तो the two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood। तो यहाँ पे wood और stood, यहाँ पे अगर आप इसको A ले रहे हैं, ये B हो गया, तो फिर से ये A राइमिंग हो गया, wood and stood। and look down one as far as I could, यहाँ पे भी A राइमिंग हो गया, और यहाँ पे टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, बोथ और ग्रोथ राइमिंग हो गया। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी बी, ओके। और ये हो गया आपके राइमिंग स्कीम। उसके अलावा आप देखिए एंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो जो आपने प्रीवियस उसमें देखा तो एनाफोरा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में एंड वर्ड रिपीट हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए टू रोड्स जो यहाँ पे बताया, सिंबॉलिज्म यहाँ पर आया है, जो कि चॉइसेस यहाँ पे बताया हुआ है। टू रोड्स जो है यहाँ पे चॉइस बताया है, लाइफ के दो चॉइसेस बताए हैं। सो हियर आई होप सो दैट literary device is clear. Coming on to the next stanza, again you see the rhyming scheme, fair, where and there, they are rhyming with each other, and claim, same, rhyming with this. So here again the rhyming is a b, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। Then coming on to next, that is alliteration, wanted, where, were, दो, that, the, यहाँ पे th, ध, तो यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो ये यहाँ पे आपके एलिटरेशन आ गया है, ओके। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अगेन राइमिंग स्कीम आप देख लीजिए यहाँ पे, ले, डे, वे, they are rhyming, so a and a। in the leaves no step had trodden black, this is b, black with back,
दे आर राइमिंग विथ ईच अदर। तो राइमिंग स्कीम अगेन ए बी यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है आपको, और ये सारे स्टैंजाज में आपको नज़र आएगा राइमिंग स्कीम्स, और बहुत आसानी से इसमें आप मेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और चीज़ आ गई आपके फर्स्ट फॉर फ, तो ये एलिटरेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। देन कमिंग ऑन टू फोर्थ स्टैंजा, अगेन फोर्थ स्टैंजा में आप देखिए यहाँ पे फोर्थ में साई एंड आई बाय, तो यहाँ पे ए एंड ए है और हैंस डिफरेंस, तो ये राइम कर रहा है। तो ए बी ए बी इस तरह का है। नाउ एजेस एंड एजेस, ये देखिए एजेस रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनदर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन आ गया। अगेन टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, और पहले स्टैंजा में भी टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया। तो आपने देख लिया सिंबोलिज्म हो गया, एलिटरेशन हो गया, एनाफोरा हो गया, रिपीटेशन हो गया। इसके अलावा राइमिंग स्कीम आपने देख ली। So students, I hope so the entire thing is clear. If you have liked, kindly share it and subscribe it. Thank you.